Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। So our God is a God of all blessings. और हमारा परमेश्वर तमाम आशीषों का परमेश्वर है। So He came into the world to bless us. और वो इस संसार में आया ताकि हम आशीषित होने So पाएं। today, whatever may be your situation, you are here. और आपकी आज परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, आप यहाँ हैं। So today, if you believe, you will see the glory of the Lord. और आज अगर आप विश्वास करते हैं, आप उसकी अद्भुत महिमा को देखेंगे। Because He is a Father of all glorious richness and glory. क्योंकि वो पिता है हर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म और महिमा से भरी हुई बातों का। So Philippians 4:19 says, "My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." और फिलिपियों की पत्री 4:19 वचन को कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को जो अपनी महिमा से परिपूर्ण है पूरा करता है। So today, just believe the Lord is going to perform mighty things in your life. So आज विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। So how many of you are going through the problem of debts, the loan problem, the financial problem? Today you believe God is going to be restore you back where you are lost. और आज अगर आप विश्वास करते हैं, आप में से कितने हैं जो कर्जे की समस्या से भरे पड़े हैं, लोन की समस्या में बोझ से दबे पड़े हैं? परमेश्वर आप अगर विश्वास करते हैं, वो आपको इन तमाम बातों से आज़ाद करने जा रहा है। So we have to go to our Father with the correct focus, the right prayer based on the word of God. और हमें अपने पिता के पास वचन पे आधारित प्रार्थनाओं के साथ होकर जाना जरूरी है। So because many times we are going through the problem because of our fault. और कई बार हम अपनी ही गलतियों की वजह से समस्याओं में होकर गुजरते हैं। So our God will never allow any problem in our lives. और हमारा परमेश्वर किसी भी परेशानी को हमारे जिंदगी में आने की अनुमति नहीं देता। So very specially nowadays many people's life there is a problem for money. और आज के समय में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पैसे की समस्याएं चल रही So हैं। based on the word of God, how we can overcome this problem? और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम इन समस्याओं से कैसे निजात को पाएं? So because He is a God of all blessings. क्योंकि वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। The promises of God all the time it is coming and giving to, the Lord is giving to us, I will bless you. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा जब हमारे पास आता है, वो कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। But many times we are not receiving the God's blessings in our lives. और कई बार हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को ग्रहण नहीं कर पाते। So today, based on the promises of God, we are going to receive the blessing what we lost in our life. और आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उन आशीषों को ग्रहण करेंगे जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में खो दिया So है। today you make a decision, Lord, hereafter I will do my business according to the word of God. और आज आप एक निर्णय ले कि परमेश्वर आज के बाद मैं वचन के अनुसार अपने काम को करने चाहूंगा। Lord, we are going to run our family based on the word of God. परमेश्वर अपने परिवार को मैं तेरे वचन के अनुसार चलाऊंगा। So if we are check ourselves based on the word of God and doing the things, the blessings of God will flow in our lives. और अगर हम परमेश्वर के वायदे और वचनों के अनुसार अपने जीवन को जांचते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो आशीषें हमारे जीवन में बहने लगेंगी। So one important word of God for our blessing from the Bible, the book of Deuteronomy chapter 28 verse 12. और वचन के अनुसार परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष जो हमें मिलती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन। So whoever having the Bible, you open this word and read now. और अगर किसी के पास भी बाइबल है, वो वचन को इसी वक्त अभी खोलेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे। Deuteronomy 28:12 says, "The Lord will open the storehouses of the skies where He keeps the rain, and He will send rain on your land at just the right times. He will make you successful in everything you do. You will have plenty of money to lend to other nation, other people, but you would not need to borrow any for yourself." और व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 12 कहता है, यहोवा तेरी भूमि को उसकी ऋतु के वर्षा देने के लिए और तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा,
तब तू अनेक जातियों को ऋण देगा, परंतु स्वयं तू ऋण कभी न लेगा। So here the word of God very clearly says, you would not need to borrow anything for yourself. और यहाँ वचन साफ साफ इस बात को कहता है कि तुम्हें अपने लिए ऋण नहीं लेना होगा। So that means the debts problem not belongs to us. और इसका मतलब ये कि ये जो कर्जे की समस्याएं हैं ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। So because God never allowing you to borrow anything, not only money, here it is written, you wouldn't need to borrow anything for yourself. और इसीलिए क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि आपको किसी भी चीज के लिए कर्ज, यहाँ पैसे के लिए लिखा गया है, लेकिन आपको किसी भी बात के लिए किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। So because you will have plenty of money to give other people. क्योंकि आपके पास बहुतायत का धन होगा कि आप दूसरों को दे सको। So this promise should be fulfilled in every believer's life. और ये वो वायदा है जो हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा निश्चित होना है। So but now today, whatever may be your situation you are going through, you may have lots of debts, huge debts. You may not think how these huge debts came to me. और आज जब आपकी समस्याएं जैसी भी है, शायद आपके जीवन में बहुत सारे कर्जे का बोझ है और आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कर्जे का बोझ आप पर आया कैसे। So now you have to do one thing. You have to believe this word of God from today onwards. और अब आपको केवल एक चीज करने की जरूरत है, परमेश्वर के इस वचन पर अभी से विश्वास करने You शुरू should करें। take a decision today, from today itself. Hereafter, I will not borrow anything for me or my family. और आपको एक कठिन निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आज के बाद आप अपने लिए, स्वयं के लिए या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई कर्ज नहीं लेंगे। Because the same word of God, it is saying one by one, the Lord will open the storehouses of heaven for us. क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा। The right time, the rain will be come in your land. और सही समय पर बारिश आपकी भूमि पर आएगी। The Lord will make us successful in everything we do. और हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर हमें उसमें कामयाब करेंगे। We will have the abundance of blessings. हमारे पास बहुतायत की आशीषें होंगी। So you will not borrow anymore. और अब आप कोई कर्ज नहीं लेंगे। So today your decision, hereafter I will not borrow anything for me or my family. और अब आपका निर्णय यही होना चाहिए आज के बाद कि आप अपने और अपने परिवार के लिए कर्ज नहीं लेंगे। So today maybe your situation, the existing loan, the money, it is double, you are unable to pay your interest, such a way you may going through lot of problem. Whatever it may be, today you believe, Lord, help me and bless me. I am going to live according to this promise of God given to me. I will not borrow anything for me or family from today onwards. आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, शायद आपके कर्जे में आपका ब्याज बढ़ता जा रहा हो, शायद आप उस ब्याज के बोझ से परेशान हो रहे हो, आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आज आपको इस वचन के अनुसार निर्णय लेने की और इस वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है कि आज से आप अपने और अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई ऋण नहीं लेंगे। Because this word of God should be practiced through our faith by obeying the word of God. क्योंकि वचन तभी पूरा होगा जब आप अपने विश्वास के अनुसार उस वचन पर काम करेंगे। Here the word of God says we should not borrow anything for ourselves. और यहाँ वचन कहता है कि हम अपने लिए कोई भी कर्ज नहीं लेंगे। So that means whatever we are having already, so along with that we have to make a plan to live without risk, without getting any loan or any debts from others. वचन यहाँ ये कहना चाहता है कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें ही पूरी योजना के साथ आप चलना शुरू करें बिना किसी पैसे के उधार लिए हुए। Because the previous part, the previous word
it says, the Lord will open the storehouse of the sky and He will send the right time, the rain in your life, and He will make you successful in everything. So Lord is giving such a great blessing. Then only in the down He is telling, you will not borrow. So that means God's plan, He is the richest Father to ready to bless you. और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, वचन अपने पहले भाग में कहता है कि वो तेरे भूमि पर समय पर बारिश करेगा, वो आपके हाथों के कामों पर आशीष देगा और अपने आकाश रूपी भले भंडार को आपके लिए खोल देगा। उसके बाद वो कहता है कि तुझे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, अर्थात वो परमेश्वर आशीष का देने वाला परमेश्वर है। वो आपको आशीष दे चुका है, वो बस आपसे चाहता है कि आप अपने लिए एक निर्णय ले। So very clearly this word of God, 1 by 1, 2, 3, 4, 5, like that, the keep on the blessing, blessing, blessing. The last line only, the word of God is mentioning, you no need to borrow anything for yourself. और जब हम इस वचन को देखते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आशीष 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 और आशीष, और अंत में वचन कहता है कि तुम्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। So that means the loan problem, the debts problem is mostly coming because of our problem. और इसका मतलब ये कि ये कर्जे की जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन में केवल इसलिए आती है क्योंकि ये हमारी उपजाई हुई परेशानी है। So nowadays many places, how to become a rich within 10 days, within 20 days, how to become a millionaire, billionaire. और आज के दिनों में हम बहुत जगहों पर देखते हैं कि कैसे 10 दिन में 15 दिन में अमीर या अरबपति बना जाए। So if we are having the greedy to become a rich, we will be put in the problem. और अगर हमारे अंदर धनी बनने का लालच है तो हम समस्या में गिर जाएंगे। So for that you should know your God who is full of blessing. और इसलिए जरूरी है कि आप अपने परमेश्वर को जाने जो आशीषों से भरपूर परमेश्वर है। So to knowing the God, you should have your prayer time, the Bible reading time. You should have a close walk with Him. Then the Lord will start to bless you one by one. और आप परमेश्वर को तभी जान पाएंगे जब आप वचन पढ़ना शुरू करेंगे, प्रार्थना में समय देना शुरू करेंगे, परमेश्वर के साथ एक निकट संबंध में जुड़ेंगे और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू करेंगे। So 1 Timothy 6:17, the word of God says, पहला तिमोथी 16-17 वचन कहता है, 6-17 वचन कहता है, we should put our confidence in God who richly provide us everything to enjoy in this world. वचन कहता है कि हमें अपना पूरा भरोसा उस परमेश्वर पर रखने की जरूरत है जो बहुतायत से और महिमा से भरकर हमारी सारी जरूरतों को हमारे लिए पूरा करता है। We should put our great confidence, full confidence upon God who richly provide all the blessings. हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर पूरी रीति के साथ होना चाहिए जो हमें तमाम बातों से और तमाम जरूरतों को हमारी पूरा करता है। So where is your confidence now? तो आपका विश्वास अब कहाँ है? Several times our confidence we are putting upon people. कई बार हम अपने भरोसे को लोगों पर रखते हैं। Many times we are putting our confidence upon the bank which used to give the loan. कई बार हमारा भरोसा वो बैंक होता है जो हमें हमारे काम के लिए लोन देता है। So today, based on this word of God, 1 Timothy 6:17, we have to put our full confidence upon the God who richly blessed us with all the blessings. और इसीलिए हमारा भरोसा पहले तिमोथी 6:17 के अनुसार उस परमेश्वर पर होना चाहिए जो अपनी महिमा से बढ़कर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। So whenever we are going in prayer with the faith, we can get the confidence. और जब कभी हम विश्वास के साथ प्रार्थना में जाते हैं हमारे अंदर वो विश्वास, वो धीरज आता है। So if you are going through problem of debts and loan in your problem, you should increase your prayer. और अगर आप कर्जे की समस्या से या लोन की समस्या से जा रहे हैं अपने जीवन में प्रार्थना का समय बढ़ा दे। The prayer, more prayer will give the more confidence in your heart. जितना
ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा आपके हृदय में वो विश्वास जगेगा। The more prayer and walking in the promises of God will increase your faith more. जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे उतना ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। Because how God will help you to clear all your debts through the promises of God only. क्योंकि परमेश्वर केवल वचनों के आधार पर ही आपको आपके तमाम कर्जों से मुक्त करेगा। So he will, if you are believing the promises of God as it is written, he will make a way, open the new doors of blessings to come out from your debts, the loan. और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे जैसा कि वचन कहता है, वो आपके लिए मार्गों को बनाता जाएगा, दरवाजों को खोलता जाएगा और आप अपने कर्जे की समस्या से बाहर आ पाएंगे। The another side, you will grow more in the Lord. Your Bible reading time will increase. Your prayer time will increase. You will grow every day in your spiritual life. और दूसरी तरफ प्रार्थना में आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे। आपके वचन मनन का समय बढ़ेगा, प्रार्थना करने का समय बढ़ेगा और रोज बर रोज आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जाएंगे। Automatically, step by step, your loan will be go away from you. और खुद ब खुद चरण दर चरण आपके जितने भी लोन की समस्याएं हैं वो चली जाएंगी। Because God will provide your need. क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता So है। if you are fully trust in the promises of God, your faith will be increased. और अगर आप सच में पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आपका भी विश्वास बढ़ेगा। So how the Lord will wipe away your debts or loan? तो परमेश्वर कैसे आपकी कर्जे की समस्याओं को दूर करेगा? So Romans 4:17. रोमियो की पत्री 4:17 Here the Bible says like this. वचन यहाँ इस प्रकार कहता है, Romans 4:17. Our God is a God who create new things out of nothing. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो नई चीजों की रचना करता है कुछ नहीं से। So out of nothing he will create a new thing. मतलब कि कुछ नहीं होकर भी परमेश्वर नई चीजों को बनाता है। So when this word of God will fulfill in your life, if you are having a great love for Jesus, great time you are spending in prayer, great time you are reading the word of God, God will give you this blessing without anything. He will create the new blessings to wipe away your debts. और परमेश्वर कैसे इस वचन के जरिए अपने वायदे को पूरा करेगा? जब आप उसके साथ प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब आप उसके साथ वचन में बढ़ेंगे, जब आप उसके वचनों पर मनन करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर निश्चय ही आपके आंसुओं को पोंछ देगा। So in this situation, your mind will not be like before. I have to earn more money. I have to have more thing. You will have the great satisfaction what you are having now. और आपके हृदय में ऐसी कोई आशा या ऐसा कोई बात नहीं होगी कि आपको बहुत ज़्यादा कमाना है, लेकिन जो कुछ भी आपके पास सीमित रूप से है या जितना भी आपके पास है, परमेश्वर उसमें आपको तसल्ली देंगे। So first God will help you to come out of your loan or debts problem. Then He will give you the content life, whatever you are having. From that only you will satisfied. और पहले परमेश्वर आपको आपके कर्जे की समस्या से आज़ाद करेंगे, उसके बाद वो आपको स्थिरता का जीवन देंगे, वो जीवन जो आपके पास है और उसी जीवन से वो आपको स्थिर करेंगे। So God will take you into the new phase of your faith. From that path of your faith, you will confess, you will thank God. Thank you, Lord. My God is a God who creates the new things
From the nothing, such a way you will start to praise the name of the Lord. और आप उस रास्ते से होकर परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करेगा जब आप परमेश्वर को कहने पाएंगे कि परमेश्वर धन्यवाद हो क्योंकि तूने कुछ नहीं से मुझे कुछ बना दिया है, और आप उस परमेश्वर को शुक्रिया कहेंगे। The Bible says you will not see any wind or any rain, but the valleys are going to be filled with the water. और वचन कहता है तुम कोई आंधी, कोई तूफान और बारिश नहीं देखोगे, लेकिन वो भूमि को जल से भर देगा। From nothing he will create everything for you. क्योंकि वो आपके लिए कुछ नहीं से सब कुछ बनाएगा। If you believe, you see the glory of the Lord. अगर आप विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Your only statement from today onwards, I will not borrow anymore. और आपको केवल एक ही बात हमेशा बोलने की जरूरत है कि आप आज से कर्ज नहीं लेंगे। The God is going to help you to come out of from all the huge debts or loan. और परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि वो उधार, वो कर्जे कितने भी भारी क्यों ना हो, वो आपको उनसे निकाल के खड़ा करेगा। My confidence is only in the Lord Jesus. मेरा भरोसा और केवल भरोसा यीशु पर है। I am going to walk on the promises of God. मैं परमेश्वर के वायदों पर चलूंगा। I am going to all the time enjoy the abundance of blessings in my life. और मैं अपने जीवन में बहुतायत की आशीष का आनंद उठाने पाऊंगा। Such a way your spiritual life should grow. और इस तरह आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। So turn your Bible, 2 Kings chapter 4 verse 3 to 7. अपनी अपनी बाइबलें खोल ले, दूसरा राजा अध्याय 4 वचन 3 से 7। Here one person having a huge debts. और यहाँ कहानी है एक पुरुष की जो बहुत कर्जों में डूबा हुआ था। The wife of the prophet. और वो जो मनुष्य है वो एक प्रोफेट की पत्नी है। So the husband passed away. He was a prophet. और चूंकि कि उसका पति एक प्रोफेट था, भविष्यवक्ता था। Because while he was alive, she was not in the debts. क्योंकि जब तक वो जिंदा था तब तक वो कर्जे में नहीं थी। So because while even though she had debts, but the husband was alive, the prophet, she enjoyed the God's blessings in their life. क्योंकि जब तक उसका पति जिंदा था, वो भविष्यवक्ता जिंदा था, वो परमेश्वर की आशीष का आनंद अपने जीवन में उठाते थे। The wife fully dependent on the husband. और पत्नी जो थी वो पूरी रीति से पति पर निर्भर थी। The wife no need to worry about money or anything. और पत्नी को पैसा या किसी दूसरी बातों के लिए सोचने के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं Once थी। the husband passed away, और एक बार जब उनके पति गुजर गए, so then she gone through lots of problem because of the loan or debts. और उसके बाद उनके जीवन में परेशानियां शुरू हुई बहुत सारे कर्जे और उधार की वजह से। So she took a right decision as per the Bible. She never went to any other people, those who are money, those who are in the bank. She went to the man of God, Elisha the prophet. और वचन के अनुसार जैसा कि वचन कहता है, इतनी समस्याओं के बाद भी वो किसी मनुष्य के पास नहीं गई, ना तो किसी बैंक में लोन लेने के लिए, उधार लेने के लिए गई, लेकिन वचन के अनुसार वो परमेश्वर के दास एलिसा के पास गई। So this should be our faith. और यही हमारा विश्वास होना This चाहिए, should be our prayer life. और ऐसा ही हमारा प्रार्थना का जीवन होना So चाहिए। then the word of God, 2 King 4:3 says, the prophet Elisha said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessel. और फिर एलिसा उस स्त्री से कहते हैं कि जाओ और अपने पड़ोसियों से खाली बर्तनें लेकर आओ जितना ला सकते हो। So before that, she said one thing, my husband died. I don't have anything except a small jar of oil. This is the anointing of the Holy Spirit. और इससे पहले उस स्त्री ने एलिसा को सिर्फ एक बात बताई कि मेरा पति मर चुका है और मेरे पास कुछ नहीं है, केवल एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और वो तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है। Dear friend, if you are going through problem, debts, loan after loan, one bank, another bank, this, that, and for the all your monies are going in interest with the private banks, this, today, God's plan, you should be filled with the Holy Spirit with a new anointing oil.
और प्यारे मित्रों, अगर आप अपने जीवन में ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हो, कर्जे की समस्या, उधार की समस्या, ब्याज बढ़ता जा रहा है, आप चुका नहीं पा रहे हो, परमेश्वर आज आपको नए तेल से अभिषेक करने जा रहा है। She had a small jar of oil. उसके पास एक छोटे से पात्र में तेल था। So that is the source of our faith, the Holy Spirit. और वो जो चीज है वो विश्वास का हमारा जरिया है। So Elisha gave her a plan how to come out of the loan or the debts. और एलिसा ने उस स्त्री को केवल एक योजना दी कि कैसे उस उधार या कर्जे की समस्या से बाहर निकला So जाए। first she should go everywhere and get the empty vessels from the neighbor. पहले वो जाए, पड़ोसियों से खाली बर्तन इकट्ठा करे, More vessels. ज्यादा से ज्यादा बर्तन। So what is the meaning of the empty vessel? और इस खाली पात्र का मतलब क्या है? Prayer of faith. विश्वास की प्रार्थना। Empty, but her faith is the God who created new thing out of nothing. Romans 4:17. रोमियो 4:17 के अनुसार वो बर्तन खाली है, लेकिन विश्वास इस बात का कि वो परमेश्वर कुछ नहीं से बहुत कुछ बना सकता है। Our God need the empty vessel to help us to come out of from the loan problem or debts problem. हमारा परमेश्वर को उन खाली बर्तनों की जरूरत है ताकि वो काम करे और हमें कर्जे और उधार की बातों से बाहर निकाले। So this is the prayer of faith. और ये विश्वास की प्रार्थना है। Once the empty vessels collected, और एक बार जब खाली पात्र जमा कर लिए गए, so the word 4, 2 King 4:4 says, when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons should be inside. और फिर दूसरा राजा 4:4 के अनुसार वचन कहता है कि जब तुम एक बार अंदर आ जाओ तो दरवाजे को बंद कर लेना और अपने बेटों के साथ अंदर चली जाना। This is the praying in the Holy Spirit. और ये दर्शाता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने को। Once we are filled with the Holy Spirit, our faith will not go down. और एक बार जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं होने पाता। So by seeing the empty vessel, we will be strong in our prayer life by closing the door behind ourselves. और उन खाली बर्तनों को देखकर हमारा विश्वास बढ़ता है और फिर हम दरवाजे को पीछे से बंद करते हैं। So the shutting the door behind, it is the armor of God. It is written in the book of Philippians, in the book of in the book of Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. और ये जो दरवाजे को पीछे से बंद करने की बात है, ये परमेश्वर के उन अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होने को दिखाता है जिसके बारे में हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके वचन 10 से 18 तक में पढ़ते हैं। So we are closing the door behind, we are putting the armor of God and started our prayer in the Spirit. दरवाजे को बंद करने का मतलब है कि हम परमेश्वर के उन तमाम अस्त्रों को से सुसज्जित हो जाते हैं और आत्मा में हम पवित्र आत्मा को तैयार करते हैं। The next step is very important. The same word 4 says, then pour the oil into all those vessels and set aside the full ones. और अगला जो वचन का चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरा राजा 4:4 का दूसरा भाग कहता है कि फिर जितने खाली बर्तन हैं उन बर्तनों में तेल उंडेलते जाना और तब तक करते रहना जब तक वो भर ना जाए और उन्हें किनारे रखते So जाना। this is the faith in receiving God's miracle. और ये वो विश्वास है जिस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में ग्रहण करते By हैं। faith we are
the oil is pouring into one vessel to the another vessel. विश्वास के जरिए ही वो तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला जा रहा है। So this meaning is praying for others. और इसका मतलब है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। So the empty vessel should be filled with the person who is having the anointing oil. और वो खाली बर्तन भरा जाता है उसके जरिए जिसके पास अभिषेक का वो तेल है। So the midst of your problem, if you pray for others, the same God who changed the captivity of Job, Job prayed for his friends, God changed all the captivity, Job received a double fold blessing in his life. और ठीक इसी तरह जब आप अपने परेशानी परिस्थितियों के बीच में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो जैसे अय्यूब के ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और उसके सारे बंधन टूट गए और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, वैसे ही वो आपके लिए करते हैं। So these are the God's principle, the biblical principle to come out of from our depths. और ये परमेश्वर के बाइबल से आधारित वो सिद्धांत है जो हमें उद्धार जैसे समस्याओं से बाहर आने में मदद करते हैं। So if you are having the heart to pray for others in the midst of your problem, God will solve your problem soon. और अगर आपका हृदय ऐसा है कि अपनी परेशानियों के बीच भी आप दूसरों की समस्याओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही बहुत जल्दी आपकी समस्याओं को सही करने जा रहा है। So the another important thing, once the jar filled, she kept aside the fullness, the full ones. और दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये कि एक बार जब पात्र भर जाए तो उन भरे हुए पात्रों को किनारे रखना, अर्थात आशीषों को किनारे संभाल के रखते So जाना। this is the fullness of the anointing, the fullness of the Holy Spirit. और ये दर्शाता है उस अभिषेक की भरपूरी को, उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को। When the fullness come, all the emptiness, lackness will go away. ओ जब वो भरा हुआ, वो भरी हुई बातें आती है, जब वो संपूर्णता की बातें आती है, हर एक खालीपन चला जाता है। So then finally she came out of her depths and enjoyed the God's blessings. और अंततः वो अपने सारे उधार और कर्जे की बातों से बाहर आती है और एक आनंद का भरपूर जीवन जीती है। So the prayer of faith is very important to come out of your depths problem. और इसीलिए विश्वास की प्रार्थना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने कर्जे की बातों से बाहर आ पाए। Praying in the spirit with the armor of God by closing the door behind you, full focus in prayer is very important to help come out of your loan problem. परमेश्वर के हर एक अस्त्र और शस्त्र से खुद को सुसज्जित कर लेना और फिर प्रार्थना के साथ उसकी उपस्थिति में बढ़ना और उस दरवाजे को पीछे से बंद कर लेना आपकी हर एक समस्या से आपको निजात दिलाता है। Pouring the anointing oil into the empty jar, the praying for others is very important to come out your problem, your loan problem. अभिषेक से भरे उस तेल को दूसरे बर्तन में उंडेलना, अर्थात समस्याओं के बीच भी दूसरों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करना आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। By growing in your spiritual life, going to the fullness of the anointing, the deep level of the anointing is very important to help come out of your financial burden. अपने आत्मिक स्तर में बढ़ता जाना और फिर आत्मा में उस गहराई को पाना बहुत जरूरी हो जाता है और इस तरह आप अपनी तमाम आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। You will not borrow anything. आप कर्ज नहीं लेंगे, You will give to many people. आप बहुतों को देने वाले बनेंगे। Once you are filled with the anointing, the fullness anointing, एक बार जब आप उस भरपूरी के अभिषेक से भर
जाएंगे। Wherever you are going, the anointing will flow from you like a rivers of the living water. जहाँ कहीं भी आप जाएंगे उस जीवन के जल की नदियों की तरह आपसे अभिषेक बह निकलेगा। This is the God's plan, dear friends. और ये तो परमेश्वर की योजना है प्यारे मित्रों। So finally, God blessed one person with abundance blessings, with 100-fold blessings. और अंततः एक ऐसा मनुष्य जिसे परमेश्वर ने 100 गुना आशीषित किया। Genesis chapter 26 verse 1 says, और उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय वचन पहला कहता है, the entire world gone through the severe famine. पूरा देश अकाल से ग्रसित था। Verse, the same chapter, Genesis 26:12 says, during the time of the famine, God blessed Isaac with 100-fold blessing. और इसी उत्पत्ति के 26 अध्याय का 12 वचन कहता है कि उसी समय जब विदेश में अकाल पड़ा हुआ था, इसहाक ने 100 गुना फसल को काटा। So, how Isaac received the 100-fold blessing? तो इसहाक ने वो 100 गुना फसल की आशीष कैसे पाई? Isaac sowed seed in the land. और इसहाक ने उस भूमि में बीज को बोया। So, what is the meaning of this? और इसका अर्थ क्या है? Isaac keep on trusted the word of God, and Isaac filled with the word of God more and more. इसका अर्थ है कि इसहाक परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता था और उसके वचन से वो दिन ब दिन खुद को भरता जा रहा था। The prayer without ceasing. प्रार्थना बिना रुके हुए। The prayer all the time believing and sowing the seed, faith. और प्रार्थना विश्वास के साथ करता जाना और उसी विश्वास के साथ केवल बीज बोना और बोना। So this is the biblical principle to have the success in our businesses. और ये बाइबल से जुड़ा वो सिद्धांत है जो हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में हमें आशीष दिलाता है। Isaac everywhere famine, but he never look upon the famine in outside. He keep on sowing the seed. He keep on reading the Bible. He keep on pray and meditation. He keep on sowing the seed of faith in his life. इसहाक पूरे देश में अकाल था, लेकिन उसने अपनी आंख उठाकर उस देश के अकाल की तरफ नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा निरंतर प्रार्थना में बढ़ता गया। उसने विश्वास रूपी बीज को बोना जारी रखा और वही विश्वास रूपी बीज आने वाले दिनों में उसके लिए फसल के रूप में पैदा हुआ। Everywhere the situation in the outside was negative. बाहर की पूरी परिस्थिति नकारात्मक थी। So if you start to read the verse 13-14 onwards, everywhere the blessing Isaac is make it by digging the well, the enemies are coming and take away the blessing of Isaac. और जब आप इस वचन को आगे 13-14 में पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसके जीवन में, इसहाक के जीवन में आशीष आती गई और फिर क्या हुआ कि वो उसके जो दुश्मन थे, उसके जो विरोधी थे, वो भी उन चीजों को देख रहे थे। Wherever the servants of Isaac digging the well and find water, immediately the enemy will come and take away. Go away, this belongs to us. और ऐसा हुआ कि इसहाक और उसके लोग जहाँ कहीं भी कुआं खोदते, उसके विरोधी आ जाते और कहते कि ये स्थान हमारा है, तुम यहाँ से चले जाओ। Isaac gone through losses after losses. और इसहाक अपने जीवन में उसके बाद नाकामियों से होकर गुजरा। According to Joel 2:25, the locust came and eaten your blessing many years. और योएल की पुस्तक 2:12 के अनुसार वो बड़े पतंगे आते हैं और कई बार आपकी आशीषों को खत्म करते हैं। But God want to restore everything back in your life. You will eat abundantly, plenty, and you will praise the name of the Lord. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को देना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, आपको स्थिर करना चाहता है। Isaac gone through one after another the losses in his business. और इसहाक अपने व्यवसाय में एक के बाद बहुत सारी नाकामयाबियों से होकर गुजरा। But Isaac keep on sowing the seed, praying, prophesying, praying in the spirit, reading the Bible continuously. लेकिन इसहाक निरंतर प्रार्थना करता रहा, भविष्यवाणियों को बोलता रहा, प्रार्थना का बीज बोता रहा और परमेश्वर में बना रहा।
So in this same chapter, God gave him two spiritual blessings. और इसी अध्याय में परमेश्वर ने उसे 2 आत्मिक आशीषें दी। So after the number 1, the 100-fold blessing. और पहला जो 100 गुणित आशीष उसे मिली, So number 2, verse 22, Genesis 26:22, Isaac received a Rehoboth blessing. और इसी पुस्तक में उत्पत्ति की पुस्तक 26-22 में उसे रहोबोत की आशीष मिली। So what is the meaning of Rehoboth? और रहोबोत का मतलब क्या होता है? No more enemies. अर्थात कोई भी विद्रोही नहीं, No more locusts come and destroy your blessing anymore. कोई और टिड्डी आके आपकी फसल को, आपकी आशीषों को नष्ट नहीं No करेगा, more failure in your business. आपके व्यवसाय में कोई हानि नहीं, No more losses. कोई नुकसान नहीं। The Rehoboth means now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land and we are going to be multiplied. और रहोबोत का अर्थ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान को हमें दिया है और हम अब फूलेंगे, फलेंगे और आशीषित हो जाएंगे। Isaac reached the blessing of Rehoboth. और इसहाक उस रहोबोत की आशीष तक पहुंचा। So today in your life God want to give you the blessing of Rehoboth. और परमेश्वर आज आपके जीवन में वो रहोबोत की आशीष को देना चाहता है। The Lord is going to build a home for you. परमेश्वर आपके लिए घर का निर्माण करना चाहता The है। Lord is already prepared a upper room fully furnished blessing for you. और परमेश्वर ने पहले से वो ऊपरी कोठरी सारी आशीषों के साथ आपके लिए तैयार कर दी है। Now the Lord has made a room for every one of you. और अब परमेश्वर आप में से हर एक के लिए कमरा तैयार कर रहा है। You are going to be fruitful and receiving, enjoying the 100-fold blessings in your life. आप फूलेंगे, फलेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में 100 गुना आशीष को ग्रहण करेंगे। Isaac keep on sowed seed continuously. और इसहाक लगातार बीज को बोता रहा। Because God's plan, God want to make Isaac to blessing for the millions throughout the world. क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि वो अरबों अरबों के लिए उसे आशीष का कारण बनाना चाहता था। Isaac never borrowed in his life. इसहाक ने अपने पूरे जीवन में कभी कर्ज नहीं लिया। He only gave to the people in वो- abundance blessings. वो केवल लोगों को बहुतायत की आशीष के साथ देता था। So today you should have a strong stand. I will not borrow anymore in my life. और इसीलिए आज आपको एक कठिन कदम उठाने की जरूरत है कि आज के बाद आप कर्ज नहीं लेंगे। I am going to enjoy my blessing of Rehoboth according to Genesis 26:22. और ये उत्पत्ति की पुस्तक 26-22 के अनुसार मैं रहोबोत की आशीष को अपने जीवन में आनंद के साथ पाने पाऊंगा। Now God built a house for us to grow and multiply. और परमेश्वर अब एक घर बनाने जा रहा है जहां आप फलेंगे, फूलेंगे और बहुगुणित होंगे। Thank God for the God of Rehoboth. धन्यवाद परमेश्वर, वो परमेश्वर जो रहोबोत का परमेश्वर है। So the another blessing, Genesis 26:32-33. और दूसरी आशीष जो हमें मिलती है उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसका 32 और 33। So God blessed Isaac with a Beersheba blessing. और उसे दूसरी जो आशीष मिली वो बरसेबा के नाम से मिली। So the Beersheba, the blessing of the fullness with the peace. और बेरसेबा का मतलब होता है शांति की भरपूरी की आशीष। Isaac never stopped in the Rehoboth. इसहाक उस रहोबोत में नहीं रुका। Continuously he is doing his business with the prayer by sowing a seed. Continuously he keep on digging the well in his life. वो निरंतर अपने व्यवसाय में आगे बढ़ता रहा, बीज बोता रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा और हर जगह कुओं को खोदता रहा। God take him into the Beersheba blessing. और परमेश्वर उसे बेरसेबा की आशीष में लेकर गया। Thank God for the God of Beersheba. धन्यवाद परमेश्वर बेरसेबा का परमेश्वर होने के लिए। You are going to receive the blessing more than Isaac received in your life. आप इसहाक से भी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पाने जा रहे हैं। You will not go for borrow anymore. और आज के बाद आप किसी से उधार नहीं लेंगे। Very soon you are going to be come out of your debts problem. बहुत जल्दी आप अपने कर्जे की समस्याओं से बाहर आ The Lord जाएंगे। is going to
to open a door for you today. और परमेश्वर आज आपके लिए एक दरवाजा खोलने जा रहा है। So Galatians 3:13, this is a very important word for every believer. और गलतियों अध्याय 3 उसका 13 वचन हर एक विश्वासी के लिए बहुत मायने रखता So है। everybody you note this word, Galatians 3:13. और हर एक इस वचन को लिख ले, गलातियों की पत्री 3 वचन 13। Here the Bible says, Jesus Christ paid the price for every one of us so that the blessing promised to Abraham would come to all the people of the world through Jesus Christ, and we would receive the promised Spirit through faith. और वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में एक दाम चुका दिया ताकि उसके दाम चुकाए जाने से हम हर उस आशीष को आत्मा में होकर पा सके। We are blessed more than Abraham today और आज हम अब्राहम से ज्यादा आशीषित हैं through the faith on Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने से। All the blessing, the spiritual blessings are waiting for you. और हर एक आशीष, आत्मा की आशीष आपका इंतजार कर रही है। Ephesians 1:3 says, Praise be to God our Father who blessed us richly with all the spiritual blessings in the heavenly realm. और इफिसियों वचन 1:13 कहता है कि धन्य हो उस परमेश्वर को जो हमें आत्मा और उन तमाम स्वर्गीय आशीषों से भर देता है। Seek first my kingdom and my righteousness, all these things shall be added unto you. पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, फिर ये सारी चीजें तुम्हें स्वयं मिल जाएंगी। Seek the spiritual blessings in the heavenly realm. ओ आत्मा की उपस्थिति में स्वर्गीय स्थानों पर उन आत्मिक आशीषों की खोज में रहे। Your prayer life should be changed into the spiritual blessing, the spiritual realm. और आत्मा के चरण में आपकी प्रार्थनाओं का तरीका बदलने पाएगा। All your debts will be washed out, washed away. और आपका हर एक उधार धो दिया जाएगा। You will be blessed richly by the richest Father Jesus Christ. और आप उस महिमा से भरकर आशीष को पाने पाएंगे जो यीशु मसीह की ओर से है। Believe and confess from today onwards, I will not borrow anything in my life. विश्वास करें और इस बात का अंगीकार करें कि आज के बाद आप कर्ज नहीं लेंगे। God is going to bless you abundantly. परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देने जा रहे हैं। Let's pray right now. हम अभी प्रार्थना करेंगे। Very specially, whosoever going through the loan problem, debt problem, you please remember this word of God we meditated today. और खासकर वो लोग जो इस समय कर्जे की समस्या से गुजर रहे हैं, उन वचनों का मनन करना निरंतर याद रखें जो हमने आज सुना। From today onwards, the Lord is going to bless you. और आज के दिन से परमेश्वर आपको आशीष देने जा The रहे Lord हैं। is going to open the storehouses of heaven. ओ परमेश्वर आपके लिए आकाश रूपी भंडार को खोलने जा रहे You हैं। will receive your rain in due time, the right time in your land. और आप अपने जीवन में अपनी भूमि पर सही समय में बारिश को देखने God पाएंगे। is going to make you successful in everything you do. और हर वो काम जो आप करेंगे परमेश्वर उसमें आपको आशीषित करेंगे। Psalm 1:3 says, Whatever you do shall prosper. और भजन संहिता 1:3 कहता है जो कुछ तुम करोगे आशीषित होगे। You will not borrow anymore. और आप कर्ज नहीं लेंगे, You will give to the other people freely. आप दूसरों को मुफ्त में देंगे। So such a way the Lord is going to bless you today. और इस तरह से वो परमेश्वर आज के दिन आपको आशीष देने जा रहे हैं। Increase your prayer life. अपनी प्रार्थना का जीवन बढ़ाएं। Come close to Jesus and enjoy your spiritual life. यीशु मसीह के नजदीक आए और आत्मा में उस आत्मिक आनंद का लाभ उठाएं। All the time read the Bible again and again. और निरंतर वचन से पढ़ते रहे बार और बार। Word of God says, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. क्योंकि वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Now the Lord is increasing your faith. Our God is a God who create new thing out of nothing. और अब परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा रहा क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कुछ नहीं से सब कुछ बनाता है। You will not see any rain or wind. The valleys are going to be filled with water today. आप कोई भी आंधी और तूफान नहीं देखेंगे लेकिन आपके खत्ते पानी से भर दिए जाएंगे। Just believe your blessing. I am going to pray
pray in the Holy Spirit all the time. सिर्फ अपनी आशीषों पर विश्वास करें कि आप निरंतर पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे रहने I पाए। am going to put up my armor of God and pray in the Holy Spirit all the time. मैं प्रार्थना करें कि मैं अपने तमाम अस्त्रों से सुसज्जित हो जाऊंगा, पवित्र आत्मा के बातों से भर जाऊंगा और निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा। I am going to pray for others to pour out the anointing into the empty vessel for miracle. मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना जारी रखूंगा, एक खाली पात्र में वो अभिषेक का तेल उड़ेलूंगा ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। God is going to give you the 100-fold blessing today. परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देने जा रहे हैं। You are आज। going to grow in your spiritual life and reach your spiritual blessing of Rehoboth today. और आप अपने आत्मिक स्तर में बढ़ने पाएंगे और रहोबोत की आशीषों को पाने पाएंगे। You are going to come close to your blessing, the supernatural blessing of Beersheba today. और आप अपनी उस अद्भुत और अद्वितीय आशीषों के करीब आएंगे। आप उस आशीष जिसे बेरसेबा कहते हैं उसे अपने जीवन में पाएंगे। Your blessing is going to be flow to the people like river. और आपके जीवन से आशीषें निकलकर दूसरों के जीवन को आशीषित करेंगी एक नदी के समान। The rivers of the living water is going to be flow from your life. आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। Thank you, Lord, for your blessings. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.